मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हम हैं बेंगलुरु के दारुस्सलाम बिफ्ट हॉल में। यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई है जमात-ए इस्लामी हिंद की जानिब से। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दरअसल एक मुहिम के तहत की जा रही है। इस मुहिम का नाम है हैंड्स इन सॉइल हार्ट्स विद इंडिया, जो कि चिल्ड्रंस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की जानिब से की जा रही है। इस मुहिम के तहत बच्चों के क़ियादत में 10 लाख पौधे लगाने का टारगेट सेट किया गया है और मकसद, जैसा कि आप जानते हैं, माहौलियाती बेदारी के साथ साथ इसका तहफ़्फ़ुज़ और पायदारी भी है। मुलाहिज़ा कीजिए साला डिजिटल के साथ इसकी खुसूसी रिपोर्ट। चिल्ड्रन इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन CIO ने बच्चों के ज़रिए एक अजीम शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है, जिसका नारा है मिट्टी में हाथ दिल वतन के साथ। इस मुहिम के तहत 25 जून से 25 जुलाई 2025 के दरमियान बच्चे पूरे मुल्क में दरख्त लगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे और इनकी हिफाजत करेंगे, उन्हें नाम देंगे और उनसे दोस्ती करेंगे। We wrote to the Assistant Conservator of Forest, PVMP, and they were very obliged to give us free saplings for our Jayanagar unit, and similarly the other units have been approaching them. So this is a initiative taken to bring in eco warriors, کہ ہمارے بچوں میں وہ ذوق اور شوق اور احساس پیدا ہو کہ آج کے ماحولیاتی حالات میں کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہم ان میں ایک شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو زمین سے اٹیچ کرنا چاہتے ہیں، انہیں ایکو ماحولیاتی بحران سے کے جو مشکلات ہیں اس سے انہیں شعور پیدا کر کے اویئرنیس پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اینڈ وی آر میکنگ them to adopt each and every plant. اگر ایک بچہ بھی اپنے پڑوس میں اڑوس میں ایک پودے کو اڈاپٹ کر لے تو اس کے ساتھ اس کی ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کی انسیت پیدا ہو جاتی ہے، اینڈ ہی از گوئنگ ٹو ٹیک کیئر اٹ ایز دو اٹ از ہز پیٹ۔ اور اس طریقے سے ہم ان میں ایک شعور پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ جماعت اسلامی جو ہے بیسیکلی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ایک اسلامک آرگنائزیشن ہے۔ اب اس میں زندگی جینے کا طریقہ اسلام میں کتنا اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، کیونکہ اسلام کا مقصد ہی ایک محدود معنوں میں رکھ دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ آپ جو ہے پلانٹیشن، سیپلنگس پلانٹ کرنا، یہ سب کاریکرم کرتے ہیں، یہ سارے پروگرامز آپ منعقد کرتے ہیں، تو اس سے آپ اسلامک آرگنائزیشن سے آپ اس کو کیسے جوڑتے ہیں؟ جماعت اسلامی ہند is a socio organization. We would like to bring a change in the society through the teachings of Islam and Prophet sallallahu alaihi wasallam. As you have entered this room, hopefully onto your right you would have seen the hadith that even if a river is flowing through its full stream, even then you are supposed to protect the drops of water. This is a saying of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are trying to bring a change in the social culture in this society by doing different types of these activities and bring an awareness into the social fabric. Very recently, we had our sister youngsters organization, SIO, Solidarity Youth Movement, created during the time of Bakrid, during the time of Eid al-Adha. We created a cleanliness drive, and let us celebrate the Eid with a clean message and keep our surroundings clean. These are the topics that are the burning issues which will take us more closer to each and every Indian. Okay, as Islam, we are not supposed to concentrate only on our community, but we are supposed to have a rapport with our brethren, and we need to develop our image in such a way that has been tarnished over the period of time. To change this perspective, we are taking these initiatives which are going to bring a big change in the fabric of society.
And this should be in such a way that it should not be purely our effort, but we should take up all the other NGOs together. We should take all the other organization, irrespective of caste and cadre, and join hands with them and bring this change and be a part of a better India. बच्चे हमारे हिंदुस्तान का मुस्तकबिल हैं, इनको संवारना और इनकी तरबियत करना निहायत ही ज़रूरी है। जिस तरह का माहौल आज बच्चों को फराहम किया जा रहा है, उससे जिस तरह का बिगाड़ आज ज़माने में पैदा हो रहा है, ये ज़रूरी बन गया है कि आज बच्चों को इसकी तरफ रुझान कराया जाए और बच्चों की तरबियत किया जाए और आने वाले नस्लों का भी मुस्तकबिल संवारा जाए। जी, ये चूँकि ऑल इंडिया पैन इंडिया मुहिम है, तो इसमें कौन सी रियासतें और इंडिया बेंगलोर में कौन सी जगह मुंतखब की गई हैं? जी, तकरीबन नेशन वाइड कैंपेन है। तकरीबन हमारे 22 अजला में ये कैंपेन चल रही है और बेंगलोर में पूरे यूनिट्स, जैसे 9 यूनिट्स हैं हमारे, तो मतलब आरटी नगर, यशवंतपुर, शिवाजी नगर, जयनगर, बीटीएम और ये मैसूर रोड वगैरह, सारे पड़ला, इस सारी जगहों पे हमारा कैंपेन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये सैपलिंग्स लगाने के बाद इसकी बाकायदा देखभाल की क्या सहूलत है? जी, हम लोग है ना, हर बच्चे को उसका फ्रेंड बना रहे हैं, एज ए फ्रेंड उसको बनाकर उसकी देखभाली के लिए उसे ही लगाएंगे इंशाल्लाह, ताकि वो देखभाली करे और फिर जाके उनको बाद में हम ये भी तय किए हैं कि कुछ फॉलो अप करें और प्रीशियस अवार्ड उनको दिए। बीटीएम यूनिट में हमारे ईक्योर चैरिटेबल ट्रस्ट, वो हमारे कोलैबोरेटेड पार्टनर है, तो उन्होंने हमको सैपलिंग्स दिए थे एंड दे हैव नॉट ओनली गिवन द सैपलिंग्स, दे विल टेक केयर, मॉनिटर द सैपलिंग्स फॉर नेक्स्ट 2 years। या और हमारा मकसद भी वही है, सिर्फ पेड़ लगाना ही नहीं है, हमको उसकी देख रेख भी करना है, तो हम लोग इंशाल्लाह मॉनिटर करेंगे। तो आपका मकसद, जैसा कि आपने कहा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को लेकर बेदारी है, फिर उसका तहफ़्फ़ुज़ है, फिर उसमें पायदारी है, तो ये मुहिम क्या आगे भी चलाते रहेंगे या फिर ये वन टाइम इवेंट है? अल्हम्दुलिल्लाह ये मुहिम हर साल चलेगी। ये है ना द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। और क्या है, अगर हम जिस प्लांटिंग कहीं दूसरी जगह करें तो है नहीं, उनको जिम्मेदारी दे। फॉर एग्जांपल हम हॉस्पिटल में प्लांट करें या किसी ऑफिस में करें या किसी और जगह करें, तो फॉर टू टेक केयर ऑफ दोज प्लांट्स वी विल गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देम ओनली। तो है नहीं, उनको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे स्कूल्स में हमने पॉट्स, ये प्लांट्स लगाए हैं और उनको जिम्मेदारी भी दी है कि आप इसको देखभाल करो। अगर कुछ ज़रूरत है, वी हैव गिवन आवर नंबर्स, दे कैन कॉल अस, इंशाल्लाह वी विल गो।